Good morning, friends. मेरा नाम है ऋषि तिवारी. Today we are going to discuss over here about casting defects. Now coming to the point, first of all, what is casting? Casting, we all know, it is a type of manufacturing process through which we cast whatever the product is required. There are certain limitations in the casting that we're going to discuss further. As of now, we'll be discussing about casting defects. There are 5 types of casting defects. We will see one by one. Now coming to the point, first one is gas defect. And under this gas defect, the first one is blowholes and open blows. Now, the gas defect which are formed on the surface of casting are called open blows. So, I'm repeating it once again. Those gas defects which are formed on the surface of casting are known as open blows. See, I have marked over here open blows. I'm just showing you right now. Here, see this. These are open blows, right? Now the next one is, if we talk about, so next one is blowholes. So the gas defects which are formed inside the casting are known as blowholes. Now during the casting, the defects which are formed within the casting, inside the casting, that we can't see with our naked eyes, those are blowholes. Basically open blows, you won't be able to see. Those are very tiny holes, very tiny blows. I have shown you in an enlarged manner. Now coming to the next defect, that is scar. It is a large size blow. See, this is a large size blow which is formed on the surface of the casting. Whenever casting is done, there is a large size blow happens which is known as scar, right? Now coming to the next point, basically we have now on discussed 2 things. First one is blowholes and open blows. Second one is scar. Now coming to the third one, that is blister. It is also one of the type of gas defect. So in blister, it is a scar which is covered by a thin layer of metal. Now think. Firstly, I discussed about blowholes and open blows, right? And the blow which is a larger one becomes a scar. And if a larger blow, that is a scar which is covered by a thin layer of metal, is called as blister. So all these 3 are interrelated. So you understand? Now देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हमने बात करी ब्लो होल्स की, ओपन ब्लोज की. तो जो ब्लो होते हैं, जब वो लार्ज साइज़ के बन जाते हैं तो उसे हम स्कार बोलते हैं. जब कोई स्कार एक थिन मेटल की लेयर से कवर होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर. ये ध्यान रखने वाली बात है. ये 3 डिफेक्ट क्लियर हुए. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज पिन होल पोरोसिटी. ऑलराइट, नाउ वी विल सी इनटू दिस पिन होल पोरोसिटी. It is also one of the type of gas defect. As I told you, we are discussing as of now gas defects. So in gas defect, pinhole porosity is the defect in which a small size of the gas holes are formed due to hydrogen gas. See, these holes are formed because of the path traced by the hydrogen gas inside the cavity from high pressure to low pressure. Whenever casting is done, there is a hydrogen gas which traces the path from high pressure to low pressure, and during that process, such defects arises in the form of small size holes, basically gas holes. So such type of defect is known as pinhole porosity. Now all these 4 that I just discussed, first one is blowholes and open blows, second one is scar, third one is blister, and the fourth one is pinhole porosity. So all these 4 are the type of gas defects, and gas defect is one of the casting defect. Now the second variety of casting defect is due to molding material and methods. Now coming to that one, so molding material and methods, the first one is drop and dirt. Now basically you must be aware of ramming process. If you're not aware of, I'll be discussing later on in detail about all the processes of casting. Now coming to the first one, drop and dirt. Now see friends, due to improper ramming, what happens? Those loose sand particles which are not properly rammed will be dropped from the cope box, means from the upper side to the drag box, means from the upper side to the bottom side, and will form a projection on the casting known as drop. See, I'll show you over here. Basically you can see this is in the cope box and this is in the drag box. So due to improper ramming, the sand particles over here gets dropped itself over here. In this manner, the drop occurs, and the cavity on the other side of the casting you see over here. Now this is the drop portion and this is the cavity that got created, because you can see over here
there is already a drop happened, and because of that, if the material is coming in liquid portion and when it is getting filled inside it, there is already a sand particle over here. So the material will flow in such a manner, right? In such a manner, it gonna occupy the same thing. So you can see the same structure I have drawn over here. So here drop and dirt is shown. So what is drop? Drop is projection, and what is dirt? This is a cavity which is formed on the other side of the casting. So basically what is happening, if there is improper ramming, such type of defect you're gonna see in your casting. So make sure whenever you are making a casting, ramming should be proper. I'll teach you later on what is ramming. Coming to the next one, cuts and washes. What is cuts and washes? We will discuss. Now, as previously we are seeing now the molding material and methods, variety of defects of casting defect. So drop and dirt I just discussed. Now it's cuts and washes. So whenever there is improper ramming and gating design at minimum cross section, see I have shown you over here the minimum cross section. You can see the same over here, this one. This is the minimum cross section portion. So the mold cavities due to erosion of the sand projection can be formed over here. See, if material is coming, what will be happening? Over here the cross section is less, here the cross section is more. So whenever material is flowing, the cavity can get created, and due to the flow of the material, these sides can become distorted. So to avoid that, to provide strength, we use such type of structures to make our casting more feasible. Otherwise, whatever the required casting we are going to produce, this one we won't be getting this one because of cuts and washes phenomena. Once the material will flow, these things washes out and you won't be able to get what you want to design. Right friends? So cuts and washes is one of the important defects of casting. Now coming to the next one. We have discussed two defects. Basically first one is gas defect. Second, we are discussing molding material and methods. In this molding material and methods, we have discussed drop and dirt. And second, what we are discussing, that is cuts and washes. Right? Now third, we are discussing right now, that is scab. What is scab? So see friends, whenever there is improper ramming, the liquid metal that is we are pouring inside our casting, right? To produce our casting, whatever the liquid material we are pouring, that can penetrate into loose sand layers in the cope box and will form a projection on the casting. See what is happening. Whenever you are producing a casting, what is going to happen? See, the improper ramming. Ramming it is not done properly. So over here, certain cavities got left, and whenever the liquid material is penetrated into the casting, over here, loose sand layers are there in the cope box. Basically, this one is cope box, you can see, right? And this is the lower one is drag box. These are the basic terms you're gonna know later on. I'll teach you later on also, need not to worry for that. आप परेशान मत होइए, मैं आपको ये सब बाद में भी समझाऊंगा जब मैं कास्टिंग डिटेल में डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में. तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ है कि जब भी आप कास्टिंग करते हैं तो आपका जो ऊपर वाला बॉक्स होता है इसको आप बोलते हैं हमेशा कोप बॉक्स, राइट? और जो आपका बॉटम वाला होता है इसे आप बोलते हैं ड्रैग बॉक्स. तो जब भी आप कास्टिंग परफॉर्म करते हैं और रैमिंग प्रॉपर नहीं होती है, हाँ आप सभी लोगों ने बीटेक फर्स्ट ईयर में रैमिंग करी होगी. जब भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग लैब में गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि इम्प्रॉपर रैमिंग होती है तो जो लिक्विड मेटल होता है वो पेनेट्रेट कर जाता है लूज सैंड लेयर्स में और कोप बॉक्स में, और यहाँ पे इस तरह का एक प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाता है जिससे कि आपको इस तरह का डिफेक्ट देखने को मिलता है. तो जो आपकी फर्दर कास्टिंग क्रिएट होकर आती है ना, उसमें आपको इस तरह का एक एडिशनल पार्टिकल मिलता है जो आपको मशीनिंग के थ्रू हटाना पड़ता है, जो कि अपना लॉस है. इसके लिए हमें ज़्यादा मटेरियल देना पड़ा, ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, राइट? तो इस चीज़ से हमें बचना है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज़ रैट टेल. यू आर ऑल अवेयर अबाउट रैट. सभी लोग जानते हैं रैट क्या होता है. बहुत परेशानी होती है घरों में भी, इससे बड़ी समस्या है. अब रैट टेल डिफेक्ट की बात करते हैं तो हमने अभी तक पहला डिफेक्ट हमने डिस्कस किया था गैस डिफेक्ट, और दूसरा हमने डिस्कस किया आपका मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स. गैस डिफेक्ट के अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे. मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स के अंदर भी हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. अब हमारा 4th पॉइंट है रैट टेल. अब होता क्या है कि जो हमारी रैमिंग है, राइट, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इम्प्रॉपर रैमिंग हुई एंड इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सैंड हुई, ठीक है, तो जो मोल्ड की हार्डनेस है वो कम रह गई. अब क्या हुआ कि रैमिंग भी प्रॉपर नहीं है, सैंड की मिक्सिंग भी प्रॉपर नहीं हुई, तो जो हमारा मोल्ड बनना था वो प्रॉपर बन नहीं पाया, जिसकी वजह से जैसे ही लिक्विड मेटल पेनिट्रेट किया हमारे मोल्ड के अंदर, तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ द लिक्विड मेटल एंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड, लॉन्ग प्रोजेक्शंस कैन बी फॉर्म्ड. अब आप देखिए हुआ क्या कि जैसे ही जो हमारा लिक्विड मेटल है यहाँ से पोर हुआ फॉर एग्जांपल, तो पोर होते समय क्या हुआ कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना ये क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रैमिंग हमने करी नहीं. तो जैसे लिक्विड मेटल हमारा यहाँ पे अंदर हुआ इंसर्ट, जैसे लिक्विड मटेरियल आया तो उसके फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सपेंशन ऑफ मोल्ड चालू हुआ.
मोल्ड फैलेगा ऑब्वियसली, जब यहाँ से फोर्स आएगा तो ये फैलने की कोशिश करेगा। तो जब ये फैला तो इस तरह के प्रोजेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, और जब भी इस तरह के प्रोजेक्शंस क्रिएट होते हैं, इस तरह के प्रोजेक्शंस हम बोलते हैं हमेशा रैट टेल्ड इफेक्ट, राइट। तो अभी तक हमने 2 वैरायटी कंप्लीट करी है। पहला हमने किया था आपका गैस डिफेक्ट, दूसरा हमने किया मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स। अब हम थर्ड वन करेंगे, जो हमारे कास्टिंग के अंदर एक डिफेक्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं डिफेक्ट ड्यू टू गेटिंग डिज़ाइन। जब भी गेटिंग डिज़ाइन का प्रॉब्लम होगा तो हमें एक मेजर डिफेक्ट मिलता है, वो होता है श्रिंकेज कैविटी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा राइज़र है, राइज़र की डिज़ाइन इम्प्रॉपर होती है, तो हमें कुछ इस तरह की कैविटीज़ दिखाई देती हैं। आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो मैंने कैविटीज़ यहाँ पे आपको शो करी है। राइज़र की डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होती तो क्या होता है, जो हमारी ट्रैप्ड गैसेज हैं वो प्रॉपरली निकल नहीं पाती हैं, जिस वजह से ऐसी डिफेक्ट हमको देखने को मिलती है, राइट। तो गेटिंग डिज़ाइन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा डिफेक्ट हमें मिलता है। तो 3 यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गए, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन गेटिंग डिज़ाइन। अब हम फोर्थ वन की बात करना शुरू करेंगे यहाँ पे, जो हमारा अगला है पोरिंग मेटल डिफेक्ट, राइट। कि जो मेटल हम पोर करते हैं उसकी वजह से जो डिफेक्ट आते हैं उनकी हम बात करेंगे। इसमें पहला है आपका मिसरन डिफेक्ट। मिसरन यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि कोई फ्लो से रिलेटेड डिफेक्ट आया है। ऑब्वियसली पहले ही क्लियर है क्योंकि पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मिसरन डिफेक्ट के अंदर क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी एंड पोरिंग टेम्परेचर, क्या होता है कि जैसे आपका लिक्विड मेटल आप पोर कर रहे हो तो जो फ्लूइडिटी होती है, स्पीड ऑफ पोरिंग मेटल वो, और जो पोरिंग टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर आप मेटल को पोर कर रहे हो मोल्ड के अंदर, क्या होता है कि बिफोर रीचिंग द कैविटी, वो कैविटी तक पहुंचने से पहले ही लिक्विड मेटल क्या करता है, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिफेक्ट देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं मिसरन डिफेक्ट। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगला डिफेक्ट हम देख रहे हैं, ये है हमारा कोल्ड शट। अब होता क्या है कि हम कास्टिंग कर रहे हैं, राइट। अब हमने 2 स्ट्रीम्स लिक्विड मेटल की पोर करी। अब हुआ क्या, वो दोनों लिक्विड मेटल की स्ट्रीम्स प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं हो पाई एक दूसरे के साथ, और एक डिसकंटिन्यूटी बन गई कास्टिंग के अंदर। आप देख पा रहे हैं ये वाली डिसकंटिन्यूटी, इसी डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं कोल्ड शट। ऑलराइट, तो पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स के अंदर हमने अभी 2 डिस्कस किए, पहला मिसरन, दूसरा कोल्ड शट, राइट। अब इसके बाद जो अगला एक डिफेक्ट का पार्ट आता है वो होता है ड्यू टू मेटलर्जिकल प्रॉब्लम्स, मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स कास्टिंग के अंदर। उसमें सबसे पहला आता है हमारा हॉट टीयर्स या क्रैक्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा कि ड्यू टू यूनिफॉर्म कूलिंग, क्या होगा, कूलिंग यूनिफॉर्म है, इंटरनल स्ट्रेसेस आएंगे ही आएंगे, सबको पता है। और जो स्ट्रेसेस हैं अगर वो मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गए तो हमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे। क्वाइट ऑब्वियस भाई, देखो सीधी बात है, 2 आदमी हैं, एक आदमी ताकतवर है, एक आदमी कमज़ोर है। अब दोनों आपस में लड़ेंगे तो ज़्यादा पिटाई किसकी होगी, जो कमज़ोर है। सेम एज इन दिस सिनेरियो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारी कूलिंग यूनिफॉर्म होगी, राइट, तो जो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे कास्टिंग में, ये बात बिल्कुल श्योर है, ज़रूर होंगे। जब स्ट्रेस जो डेवलप होने हैं, अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे। अगर जो स्ट्रेस हैं वो ज़्यादा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ये है हमारा हॉट टीयर्स डिफेक्ट। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो हमारा लास्ट टाइप बचता है, जिसको हम बोलते हैं अदर डिफेक्ट्स में काउंट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर 2 डिफेक्ट्स आते हैं हमारे, वो क्या क्या है हमारा, मोल्ड शिफ्ट है और कोर शिफ्ट है, राइट। अब अगर हम मोल्ड शिफ्ट की बात करें तो मोल्ड शिफ्ट क्या होगा, अब क्या हुआ कि जो हमारा कोप बॉक्स है और जो ड्रैग बॉक्स है, राइट, अब उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं हो पाई, मिसमैच हो गया। हमने मेटल पोर कर दिया। हमें क्या करना था, हमने यहाँ पे कोशिश क्या करी थी, हमने यहाँ पे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करी थी, समथिंग लाइक दैट। हमने ये कोशिश करी थी कि हम एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, लेकिन उसके लिए हमारी कंडीशन क्या थी कि ये दोनों ऐसे होते तो हम ऐसी कास्टिंग परफॉर्म करते। ऑल राइट, ये आप समझ पा रहे हैं जो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है। अब ये अभी प्रॉपरली मैच्ड है, ये जो हमारा कोप बॉक्स है और ये वाला जो ड्रैग है ये अभी प्रॉपरली मैच्ड है। लेकिन जैसे ये मिसमैच हुए तो ये आपका कोप यहाँ पे आ गया, आप देख पा रहे हैं, राइट, और ये वाला आपका जो ड्रैग बॉक्स है वो आपको यहाँ मिल गया, तो ये अभी मिसमैच हो गए। तो हम कैविटी चाहते थे ऐसी, बट हमें मिली कैसी, हमें कुछ कैविटी आपकी इस तरह की मिली, राइट। तो ये हमारे लिए बेकार है। इस तरह की कास्टिंग हम क्या करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कास्टिंग करने से पहले कि प्रॉपर पोजिशनिंग हो जाए, अदरवाइज हमें मोल्ड शिफ्ट जैसा डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक लास्ट डिफेक्ट हमारा बचता है कोर शिफ्ट। कोर शिफ्ट डिफेक्ट क्या है कि जब भी आप कास्टिंग कर रहे हो, कास्टिंग करते समय ध्यान रखना है कि आपकी कोर शिफ्ट ना हो जाए, बिकॉज इफ शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैपेंड from its original position due to buoyancy force, you're gonna see such type of defects and eccentricity will come over there, right. You see, basically the core was this, but due to the buoyancy force it got shifted from here to here. Now this is the difference, you are seeing this difference is eccentricity, जिसकी वजह से हमारी कास्टिंग ख़राब हो गई, राइट।